Namaste Gurukulians, how are you students? Hope you will be fine. Today we will study class 12th accountancy and chapter 5 dissolution of partnership firm. We will continue the same chapter, it is 6th video. So we will solve some more numericals today. Dear students, we have done numericals up to 9 and we will start from 10th question. Open your book. This is new book DK Goel. Open page number 6.27. 6.27. It is illustration number 10. 10th illustration. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2 to 1. They agreed to dissolve the firm. The balance sheet of the firm as at that date was as follows. तो balance sheet given है, adjustments are given. तो first of all prepare realization account. It is given prepare necessary accounts. तो necessary accounts include realization account, partners loan account, capital accounts, cash और bank account. So first of all, you will prepare realization account. Transfer all the assets to the debit side first. Debtors 40,000. So two debtors. Stock 50,000. Two stock. Furniture 2,000. Computer 8,000. So two computer. Then fixed assets 41,000. Two fixed assets 41,000. Prepaid expenses 1,000. Two prepaid expenses 1,000. Profit and loss account is given, it is debit balance, so you will transfer it to the debit side of partners capital account, and C's capital is given to record to the debit of C's capital. Now liabilities, first bank overdraft is given. I told in previous video that it will be treated as a short term loan, so you will show to the credit and also make payment to the debit. 4,000 by bank overdraft. Then creditors 30,000 by creditors. Bills payable 6,000 by bills payable. 6,000. B's wife's loan. So B's wife is not partner. So outsider loan you will record here and also make payment. If any partner's loan is given, then you will prepare separate account. Otherwise, koi bhi loan, even bank loan, it will be recorded in realization. So B's wife loan 10,000 by B's wife loan. Capitals you will record in capital accounts. Now see adjustments. First, assets realized as follows. So in balance sheet, cash or bank is not given, so you will realize through bank by bank account. Stock 32,000.
Fixed assets 45,000. Then full amount received from debtors. तो debtors थे 40,000. Debtors 40. A agreed to take over furniture at 1600. If an asset is taken by a partner, record by partner's capital. तो by A's capital furniture. Furniture was taken at 1600. And also agree to make payment of bills payable. A liability की पेमेंट करेगा तो डेबिट साइड टू A's कैपिटल. बिल्स बिल, तो बिल्स पेबल अमाउंट इज 6,000, तो रिकॉर्ड 6,000. नेक्स्ट, बी एग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन, तो टू बीज कैपिटल. वाइफ लोन, बीज वाइफ लोन इज 10,000. Then there was an unrecorded asset of rupees 10,000 which was taken over by C at rupees 7,000. तो 7,000 में सेटल ही है, रिकॉर्ड टू द क्रेडिट बाय C's कैपिटल. Unrecorded asset 7,000. A bills receivable for 5,000 was received from a customer, Mohan. मोहन से एक बिल रिसीव हुआ था एंड द बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक. बैंक से डिस्काउंट करा लिया. मोहन बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसे पर रुपी हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. भाई जब बिल बैंक से डिस्काउंट कराया है और वो बिल डिसऑनर हो जाए तो बैंक फुल 5,000 डिडक्ट कर लेगा. इसका मतलब हमें 5,000 रुपये बैंक को पे करने हैं. तो यू विल रिकॉर्ड टू द डेबिट टू बैंक बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड 5,000. और ये जिस कस्टमर से बिल था उसने 60 पैसे दे दिए हमें, तो 60 पैसे 5,000 का 60% 3,000 रिसीव होगा. तो रियलाइज कर लो बाई बैंक ये है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, तो 3,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम दिस बिल बाई बैंक. ओके. Creditors were paid at a discount of 1,500. तो मेक पेमेंट क्रेडिटर्स ये है, तो टू बैंक. आप इकट्ठे भी कर सकते हो या अलग अलग शो कर दो. जैसे ये था ना बिल डिस्काउंटेड टू बैंक बिल डिस्काउंटेड, ये था 5,000. ओके. एंड टू बैंक्स एडिंग इज सेम creditors. Creditors are paid at a discount of 1,500. तो इसमें से 1,500 लेस कर दो, 28,500. तो यू मस्ट सी ऑल लाइबिलिटीज आर पेड और नॉट. अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए एडजस्टमेंट नहीं है तो यू विल पे एट बुक वैल्यू. अब इसमें बैंक ओवर ड्राफ्ट है 4,000, नथिंग इज गिवन वेदर इट इज पेड और नॉट, तो यू विल पे टू बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000. Creditors were paid, bills payable was paid by A, B's wife loan was paid by B. Okay, all liabilities are paid. Assets में नहीं देखना आपने, liabilities में देखना है. अगर किसी liability की पेमेंट के लिए नहीं कहा है तो you will pay. Assets जितनी कहा है उतनी रियलाइज करोगे. तो टोटल 500 और 12, 17, ये टोटल करो आप. 7 और 3 10, 1 4 4 4 12, 120. ओके. तो बैलेंस दिस रियलाइजेशन अकाउंट, तो इट विल शो ए लॉस. डेबिट साइड टोटल इज 195,500.
write the same total here. 195,500. Deduct all these items. It will be loss. By loss transfer to A, B, C. So loss amount is 16,900. And profit sharing ratio is C 2 to 1. So distribute the loss in A, B and C in 2 to 1. So it will be 67, 60, same, and C's share is 3380. Okay, so realization account is prepared. Now prepare partners capital accounts. Prepare 3 columns for amount A, B, C. A, B, C. तो कैपिटल बैलेंस फर्स्ट ए बी के क्रेडिट बैलेंस हैं 70,000 ईच. बाई बैलेंस बी डी. सी का असेट्स में बैलेंस है डेबिट 8,000 टू बैलेंस बी डी, नॉट सी डी, इट इज बी डी, brought down. In balance sheet, profit and loss account is given. See, second last item 40,000. So distribute in ABC in all ratio. Entry will be ABC debit to realization account, not partners capital account, profit and loss. Entry will be ABC debit to profit and loss account. So record to the debit of A, B and C to profit and loss account. तो 40,000 को 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 16, 16 and 8. Okay. Now partners taken assets here. A ने फर्नीचर लिया है, B ने C ने ये अनरिकॉर्डेड असेट ली है. तो रिकॉर्ड टू द कैपिटल अकाउंट. और हियर आल्सो ए ने बिल्स पेबल पे किया है, बी ने वाइफ्स लोन पे किया है. तो व्हेन एनी असेट इज टेकन बाय ए पार्टनर, वी विल रिकॉर्ड टू द क्रेडिट हियर बाय एज कैपिटल है. तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो ए का कैपिटल डेबिट है तो रिकॉर्ड टू द डेबिट टू रियलाइजेशन. तो ए ने फर्नीचर लिया 1600 में, रिकॉर्ड टू द अकाउंट ऑफ ए. और सी ने अनरिकॉर्डेड असेट ली, इसके लिए एंट्री है सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो ये टू रियलाइजेशन है, रिकॉर्ड इन द कॉलम ऑफ सी 7,000. नाउ लाइबिलिटीज आर पेड बाय पार्टनर्स ए बी. इसके लिए एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी. तो ए बी क्रेडिट है, रिकॉर्ड टू द क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट. तो ए ने पे किया बिल्स पेबल 6,000 ए कॉलम, और बी ने किया वाइफ्स लोन पे 10,000 बी कॉलम. ओके. नाउ एंट्री फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन ए बी सी डेबिट टू रियलाइजेशन. तो रिकॉर्ड टू द डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. These are the amount 67, 60, 67, 60, 33, 80. Okay. तो नाउ बैलेंस दिस अकाउंट्स एंड मेक पेमेंट. अगर किसी कैपिटल कम रहेगी ही विल ब्रिंग कैश, किसी की ज़्यादा है तो ही विल बी पेड. तो ए एंड बी के जो बैलेंस हैं वो क्रेडिट ज़्यादा है. तो एज टोटल इज 76,000.
6,000. राइट सेम टोटल हियर 76,000. ये लेस करके पे कर दो टू बैंक. तो इट विल बी 51,640. Now B's total is 80,000. Right, same 80,000. Deduct. It will be 57,240. And C's total debit is more. So total of debit side it will be 26,380. So he will bring cash by bank. 26,380. 26,380. Okay. Now prepare bank account. No opening balance is given. अभी जो बैंक रियलाइज हुआ है आफ्टर सेल ऑफ असेट्स ये 120. एंट्री फॉर दिस इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो रिकॉर्ड टू द डेबिट ऑफ बैंक 120 टू रियलाइजेशन अकाउंट. एंड पेमेंट इज मेड फॉर लाइबिलिटीज. ये है टोटल अमाउंट. एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो रिकॉर्ड टू द क्रेडिट ऑफ बैंक बाय रियलाइजेशन. इसके अलावा जो पेमेंट हुई है पार्टनर्स कैपिटल की हुई है, ये एज कैपिटल डेबिट टू बैंक. तो बाय एज कैपिटल बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल. बी को पेमेंट हुई है ये 57,240. एंड सी बोले क्या है 26,380. एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. तो रिकॉर्ड टू द डेबिट टू सीज कैपिटल 26,380. Okay, so this is okay, this is one. So total both the sides, so it will be 146,380, 146,380, and credit side also same 146,380. Okay, so we have done questions up to 10. स्टार्टिंग में मैंने दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड. दीज क्वेश्चंस आर रिलेटिंग टू जर्नल एंट्रीज. मैंने आपको बोला था कि इसको बाद में करेंगे, अब करेंगे. पहले सेकंड करेंगे उसके बाद थर्ड करेंगे, क्योंकि नाउ आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज. So first we will do question number second. Open illustration second. अगर मैं स्टार्टिंग में आपको इसको बताता तो it was quite difficult to make you understand. Now I have taught you everything. Now it will be easy for you to understand second question. Open illustration number second. It is page number 6.9. Open page 6.9, illustration second. You have to pass journal entries. First, I will tell you journal entries which are based on realization account. Realization account is in front of you.
तो आई विल टेल यू वेयर इट इज रिकॉर्डेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच व्हाट जर्नल एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड. फर्स्ट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000. भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट हम यहाँ में डेबिट में करते हैं टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस. तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट इज 5,000. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Write the narration, realization expenses paid. Second, realization expenses amounting to ₹8,000 were paid by partner X. अगर एक पार्टनर कोई लाइबिलिटी की पेमेंट करता है तो यू विल रिकॉर्ड टू द डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एक्स है तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 8,000. इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब पार्टनर ने पे कर दिए तो ये जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे पार्टनर्स के कैपिटल की क्रेडिट में जाएगा, वहां से बैलेंस बढ़ेगा, उसको यहाँ पेमेंट हो जाएगी टू बैंक. थर्ड, realization expenses amounting to ₹10,000 were paid by the firm on behalf of a partner. ये रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 पार्टनर ने पे करने थे, फर्म ने पे कर दिए. हम रियलाइजेशन अकाउंट तब डेबिट करते हैं अगर वो फर्म का एक्सपेंस है. इट इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ द फर्म. फर्म ने पे जरूर करे हैं तो बैंक क्रेडिट कर दो टू बैंक. किसके भी यहाँ पर पे किए हैं, पार्टनर के, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो. अमाउंट इज 10,000. अब पार्टनर ने पे करने थे, फर्म ने पे कर दिए पार्टनर की तरफ से, तो जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे वो डेबिट में जाएगा टू बैंक, तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा. जब पेमेंट के टाइम उतना बैलेंस कम हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि वो पैसे फर्म ने पे करे, उस पार्टनर ने पे करने थे. फोर्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹15,000 वर पेड बाय द फर्म. फर्म ने पे करें, बैंक क्रेडिट करो. मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर्स हैज टू बियर दीज एक्सपेंस. एक्स ने पे करने, सेम केस है ये, तो एक्स कैपिटल डेबिट टू बैंक 15,000. Okay. Fifth case. Realization expenses amounting to ₹20,000 were paid by the firm. भी फर्म ने जब पे करे हैं तो बैंक क्रेडिट करो 20,000 से टू बैंक. $20,000. 8,000 were to be borne by the firm. फर्म ने 8,000 पे करने थे तो फर्म का एक्सपेंस है, फर्म के एक्सपेंस से रियलाइजेशन डेबिट होगा. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 एंड बैलेंस बाय मारुति ए पार्टनर. बाकी मारुति ने पे करने थे, फर्म ने पे करे तो मारुति को डेबिट कर दो. मारुतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000. दिस विल बी द एंट्री. फिफ्थ, रिलायंस डेबिट, मारुतिज कैपिटल डेबिट टू बैंक. ओके. सिक्स्थ, dissolution expenses amounting to ₹20,000. 8,000 were to be borne by the firm and balance by Maruti a partner. The expenses were paid by Maruti. सारे मारुति ने पे करे, फर्म ने पे नहीं करे. अब जो मारुति ने बोन करने थे वो थे 12,000.
भी टोटल 20,000 हैं, 8,000 फर्म ने पे करने थे, 12,000 मारुति को पे करने थे, उसी ने पे कर दिया, दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड हियर। जो फर्म ने पे करने थे 8,000 वो मारुति ने पे करे हैं, वो रिकॉर्ड करेंगे। अब मारुति का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, और क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है इसलिए रियलाइजेशन डेबिट कर दो, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल अकाउंट 8,000। अब यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों आया? क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है 8,000। अब मारुति क्रेडिट क्यों है? क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस मारुति ने पे करा है, उसकी कैपिटल की क्रेडिट में जाएगा, वहां से उसको पेमेंट हो जाएगी। ओके। 7th, रवि, ये सुधीर, ए पार्टनर हु वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, उसको रेम्यूनरेशन दे रही है। ही वाज टू बियर all expenses of realization which amounted to rupees 16,000 were paid by the firm। भाई जो उसको रेम्यूनरेशन देना है फर्म ने, वो फर्म का एक्सपेंस है, फर्म के एक्सपेंस से रियलाइजेशन डेबिट होगा 10,000। और ये 16,000 कंप्लीट मनी फर्म ने पे करा है, पेमेंट इज मेड बाय फर्म, तो क्रेडिट बैंक अकाउंट 16,000। बाकी जो 6,000 हैं वो सुधीर ने पे करने थे, फर्म ने पे कर दिए, तो सुधीर इसको कैपिटल को डेबिट कर दो, क्योंकि डेबिट में आके उसका बैलेंस कम हो जाएगा। सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, दिस विल बी द एंट्री। 7th, रियलाइजेशन 10, सुधीर 6, टू बैंक 16। ओके। 8th, रवि, ए पार्टनर इज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, वो खुद बियर करेगा। विच वर 5,000 वर पेड बाय द फर्म, वो फर्म ने पे करे हैं। जो फर्म का एक्सपेंस है वो 15,000 है, जो उसको रेम्यूनरेशन दे रही है, तो रियलाइजेशन डेबिट करो फर्म के एक्सपेंस से 15,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट and 5,000 वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने 5,000 पे करे, तो टू बैंक इसको दोबारा पढ़ो। रवि, ए पार्टनर इज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000, तो उसका 15,000 रेम्यूनरेशन है, रियलाइजेशन डेबिट होगा। फर्म ने उसका रेम्यूनरेशन 5,000 फर्म ने पे कर दिया टू बैंक, बाकी 10,000 उसने खुद, तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो टू रवीज कैपिटल अकाउंट। टोटल एक्सपेंस ऑफ द फर्म इज 15,000, जो रवि का रेम्यूनरेशन है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, रियलाइजेशन डेबिट। फर्म ने पे कर दिए 5,000, 10,000 ये फर्म का ही एक्सपेंस था, फर्म ने पे नहीं करा, तो रवि के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में चला गया। जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसकी क्रेडिट में जाएगा 10,000, वहाँ से पेमेंट आएगी, यहाँ इंक्रीज होगी, पेमेंट हो जाएगी, तो रवि विल बी पेड इन कैपिटल अकाउंट्स। और नंबर 9, See, Anil, a partner is to be paid remuneration of rupees 20,000 for dissolution work.
फर्म का एक्सपेंस है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹7500 वर पेड बाय द फर्म, ये भी फर्म का एक्सपेंस है, बिकॉज in this statement it is not given that realization expenses were to be paid, were to be borne by the partner, ये कहीं नहीं लिखा है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो फर्म का एक्सपेंस है। तो फर्म का टोटल एक्सपेंस हुआ 27,500। तो यू विल डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। और उसका रेम्यूनरेशन है वो कैपिटल अकाउंट में डालो, टू अनिल्स कैपिटल 20। क्योंकि क्रेडिट में जाके वहां से पेमेंट हो जाएगी। बाकी जो फर्म ने पे करे हैं टू बैंक या कैश 7500 टू बैंक 7500। 10th, Sunil, a partner, is to be paid remuneration of 25,000 for dissolution work, फर्म का एक्सपेंस है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹9,000 वर पेड बाय हिम, पार्टनर ने पे करे, लेकिन एक्सपेंस ये भी फर्म का है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ये मेंशन नहीं है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी पेड बाय द पार्टनर। तो टोटल फर्म का एक्सपेंस हुआ 25 + 9 34। ये डेबिट था। तो रियलाइजेशन ये अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सुनील, क्योंकि उसका जो रेम्यूनरेशन मिलना है उसके लिए भी एंट्री रियलाइजेशन डेबिट टू सुनील, और जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसने पे करे उसके लिए भी सेम एंट्री है रियलाइजेशन डेबिट टू सुनील। तो टू सुनील्स कैपिटल। $34,000। ओके। 11th, Vijay, a partner paid realization expenses of ₹10,000 and these were to be borne by him। भाई उसी ने पे करने थे और उसी ने पे कर दिए, तो we will not record in books। तो write here no entry। इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। तो these are the various journal entries which were totally based on preparation of realization account or partners capital account. So I think you have understood all these entries. If again some problem is there, you can ask in doubt classes, you can ask on WhatsApp, you can make call to me. And one more question, third, is also relating to journal entries. So we will do this question in next video lecture. Till then, goodbye students, have a nice day.